Okay, Assalamu alaikum, you all, dear students. Yesterday we were talking about the significance of different branches, including we have discussed about the histology. Let's resume our discussion from histology, and because we were talking about the significance of histology. So, number one point here, this slide shows the many medical technologies, companies, pharmaceutical companies, and other companies required to test their products need trained histologists. It means in the field of pharmaceutical companies and other lab works, histology plays a very major role because the pharmaceutical companies also need histologists or those who have a good knowledge of histology so that they can actually observe, they can practically work on their medicines पर वो काम कर सकें, इसीलिए उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है. Or after all, the second point shows that in understanding what to look for normal tissue, a histologist can diagnose and theorize about why the product would create a specific reaction in tissues. So this number second point in this slide shows that histology is also play a very important role to diagnose the diseases and to diagnose any reaction if there is in the tissues because of use of any chemical or medicine in it. So keeping in view that that information, histologists play a very important role here. अगर वो डायग्नोज करेगा उसके बाद वो बता सकते हैं, वो हिस्टोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि भाई नॉर्मल टिश्यूज़ की क्या कंडीशन होती है और उनमें जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं और कब और क्यों होते हैं. This is also helpful and it is told by the histologist. Number third point shows here the histology of a different tissues can be used in identify unknown tissues. Uh, it means with the help of histology, we can differentiate the different types of tissues, even unknown tissues. Okay, and these tissues can be identified with the help of information of histology. It provides clues to functions of tissues or cells. यानी इसका मतलब ये हुआ कि it provides tissues and clues. See this point provides clues to function of tissues or cells. यानी सेल के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन देना और फिर टिश्यूज के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन देना या फिर क्लूज देना कि विच टाइप ऑफ दीज टिश्यूज और विच टाइप ऑफ सेल्स दीज आर और इवन आइडेंटिफाई डिजीजेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इवन अगर कोई डिसऑर्डर है उन टिश्यूज में सेल्स में तो भी हमारी कौन हेल्प करता है? हिस्टोलॉजी और हिस्टोलॉजिस्ट. Okay, so the last slides are the significance of histology. Why it is histology? Why histology is important? So it is here is somehow literature. I want to share the same here. Okay, it is important because it is one of the tool in medical toolbox. No doubt it is the tool in the medical toolbox for what? For diagnosis of diseases. This we have already discussed. A great many diseases reveals themselves at a cellular levels. क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस होती है वो सेल्यूलर लेवल तक होती हैं, टिश्यूज लेवल तक होती हैं. So histology is one of the best
tool to identify them in the field of medical sciences or medical toolbox. Okay, and for suppose many cancers, bone and connective tissues diseases, vascular diseases, liver diseases, kidney diseases, and others can be definitely diagnosed using histological techniques. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि फॉर सपोज डिजीज का एग्जांपल दे रहा है, कैंसर है, बोन से रिलेटेड कैंसर है या बोन से रिलेटेड डिजीजेस हैं, बिकॉज बोन इज आल्सो अ टिश्यू यू नो, एंड connective tissue you know, bone is a connective tissue and blood even is a connective tissue. So connective tissue diseases, vascular diseases, okay, vascular diseases में भी ये हमें जैसे blood vessels हैं, उनके अंदर जो tissues हैं, जो है ब्लड के अंदर जो टिश्यूज हैं या ब्लड खुद एक टिश्यू है, लिवर डिजीजेस हैं उसके मुतालिक, किडनी डिजीजेस एंड अदर्स कैन बी डेफिनेटली डायग्नोज्ड बाय यूजिंग दिस ब्रांच और हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स, वो हम यूज कर सकते हैं. So that was all about the significance of histology. Okay, I'm sure you are getting it. Let me collect. There are the 8 participants who have raised their hands to ask something, I guess. So let me ask from those students what they want to ask. Riazullah, जी बेटा. ये सर हाणे जेको सर तव्हां वेस्कुलर डिजीज ॿुधायो सर, इहो बि रिपीट कजो. ऐं सर हिकु ॿी शइ सर असांखे इहो चवणो आहे त जेको सर तव्हां सम्झायो था न सर, टाइम बि ॾियो ताकी असां लिखी बि सघूं जेको तव्हां सम्झायो था, जेको तव्हां पॉइंट ॿुधायो था सर उहो असां लिखी बि वठूं. बेटा ॾिसो स्क्रीन तव्हांजे साम्हूं मतलब स्लाइड शो थियनि थियूं. यस यस ठीकु आहे. हाणे ॾिसो सर जेके तव्हां इंपोर्टेंट पॉइंट था ॿुधायो. अच्छा, इन खां अलावा जेके ॿुधायां थो पियो, सही आहे, ठीकु आहे. यस सर स्लो ॿुधायो ताकी असां लिखी बि वठूं. Right. Okay, Wajiuddin, beta, what do you want to ask? सर आप सर पहले मुझे सर चैप्टर का नेम बता दें, और सर ये तो बताएं सर, ये जो सर अभी आप पढ़ा रहे हैं सर, ये आपने या किस हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे हैं या बायोलॉजी? बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोलॉजी. क्या आपने नहीं देखा कि हमारा जो SLO है, सिलेबस क्या है? आपके पास सिलेबस है? यस सर. तो आपको पता है कि हिस्टोलॉजी उसमें है? सर अभी सर मैंने देखा तो नहीं है सही. बेटा जैसे ही क्लास शुरू हो तो पहले SLO देखा करें, और वैसे भी मैं जब लिंक शेयर करता हूँ तो वो टॉपिक भी लिखता हूँ वहाँ पर, ठीक है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. हम स्लो चल रहे हैं, इसीलिए आज हमारे पास सेकेंड वीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट सर हिस्टोलॉजी सर के बारे में जी. और इसमें सर एक पॉइंट लिखा हुआ है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. जी तो मामू बोले आना. ओके, अलीजा बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क? सर मुझे हिस्टोलॉजी में सेकंड लास्ट एंड लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया, और आगे भी क्वेश्चंस हैं, बता दूं अभी? सेकंड लास्ट और लास्ट किस स्लाइड में? इसी में हिस्टोलॉजी. यस सर. आपके सामने है अभी इस पर? यस सर. सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट और लास्ट. ओके. ये जो है बेटा, ये मैंने लिखा है वहाँ यहाँ पर, in understanding what to look for normal tissues, a histologist can diagnose and theorize. ये समझने के लिए कि नॉर्मल टिश्यूज कैसे होते हैं, हिस्टोलॉजिस्ट को ये पता होता है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर हम इन पर मेडिसिन या दूसरे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो इनमें मतलब क्या चेंजेस आती हैं, कौन से रिएक्शंस होते हैं इन टिश्यूज पर, वो थ्योराइज यानी वो हम फिर कंक्लूड करते हैं कि
क्या उनमें चेंजेस आती हैं. दिस इज द सेकंड लास्ट पॉइंट. द लास्ट पॉइंट शोज कि हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टिश्यूज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अननोन टिश्यूज. ओके, यानी हिस्टोलॉजी की मदद से जो हम टिश्यूज जज नहीं कर पा रहे होते आमतौर पर, तो वो हिस्टोलॉजिस्ट या हिस्टोलॉजी की कुछ उनमें जो सिग्निफिकेंस होते हैं या प्रॉपर्टीज होती है कुछ टिश्यूज की, उनकी मदद से हम टिश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. और ये हिस्टोलॉजी यानी हमें ये क्लू देती है कि उनके फंक्शंस और सेल्स के फंक्शंस और टिश्यूज के फंक्शंस क्या हैं, ताकि हम जो डिजीजेस भी हैं ऑर्गेनिजम्स में या टिश्यू लेवल तक जो डिजीजेस भी हैं वो भी हम जो है आइडेंटिफाई कर सकें. ओके सर सर और क्या पूछना चाह रही हैं? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि डिजीज वो जो मेडिसिन होती है उनके हमेशा टिश्यूज पर क्यों अप्लाई करते हैं? There are diseases which are at the level of the molecular levels or tissues level. For suppose कभी कभार आपको क्या होता है, खुदा न खास्ता जब एक्सीडेंट्स होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनके बिल्कुल जो मसल्स हैं वो कभी कभार मसल्स डैमेज हो चुकी होती है. मसल्स क्या है? टिश्यूज है. मसल्स अगर मसल्स बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है, अंदर से ब्लड वेसल्स नजर आ रही होती हैं, ये क्या है? टिश्यूज हैं. तो क्या हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो टिश्यूज लेवल पर करेंगे या कहेंगे कि भाई नहीं सिर्फ जो अपर लेवल या सरफेस पर है उसी का हम ट्रीटमेंट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे? और नहीं सर, टेस्ट वगैरह करते हैं. चेंजेस जो आती हैं वो टिश्यूज लेवल पर आती हैं. ऐसे जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जो डिजीज है वायरल डिजीज है, बहुत सारी, बल्कि ऑल वायरल डिजीज का जो इफेक्ट होता है वो टिश्यूज लेवल पर होता है. टिश्यूज लेवल तो दूर की बात, सेल लेवल तक होता है. ठीक है, कोई भी ऐसी डिजीज नहीं कि ऑर्गन लेवल पर हो और बस. ये जो चेंजेस आती है वो टिश्यूज लेवल पर आती है. जब डिजीज मतलब वो टिश्यूज को डैमेज करती हैं. जी हाँ, टिश्यूज को डैमेज करती है. ठीक है, और क्या सवाल है? और सर वेस्क्यूलर डिजीजेस भी मुझे समझ नहीं आई जो आगे चलो हैं. ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट में दूसरों से सवाल कर रहा हूँ. अच्छा, उसके बाद बेटा है मोहम्मद इदरीस. यू वांट टू आस्क समथिंग? सर यो पहिरियों पॉइंट तो ॿुधायो, समझ में ना आयो मांखे एस्ट्रोलॉजी जो. क्या मैनी मेडिकल टेक्नोलॉजीज इस पर? जी सर, यो जी. Listen beta, many medical technologies, companies, pharmaceutical companies and other companies required to test the products need to train the histologist. ये कंपनीज जेके आहिनि, ये जेके कंपनीज आहिनि, इन्हनि ये पाण उन्हनि खे ज़रूरत हूंदी आहे उहे जेके मेडिसिन ठाहींदियूं आहिनि उन्हनि जो एक्सपेरिमेंट बि कनि ऐं उनखे अप्लाई बि करे ॾिसनि, ऐं उनजे लाइ उनखे हिकिड़ो ट्रेंड या हिकिड़ो हिस्टोलॉजिस्ट जी ज़रूरत हूंदी आहे, या हिस्टोलॉजिस्ट खे वधीक ट्रेन करण जे लाइ त बाबा हिन दवा जो कहिड़ो इफेक्ट आहे, कहिड़ो असर आहे, त उहे एक्सपेरिमेंट कराईंदा आहिनि उहे कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज. यू नो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि? जेके मेडिसिन ठाहींदियूं आहिनि. ठीक है, ठीक है. असरा जी. असरा, यू वांट टू आस्क समथिंग? असरा बाबा तव्हांजी आवाज़ नथी अचे, शायद तव्हांजी माइक वाइक में प्रॉब्लम आहे. तव्हां तो अनम्यूट भी कयो आहे पर आवाज़ नथी अचे. ओके, उन खां बाद में आहे रूज जी. बेटा सर इन जेका 10 स्लाइड आ 10 नंबर स्लाइड आ इहा सही समझ में ना आई. इन में जेके डिजीजेस ता इन में बुधाया बेटा 10 उनन में नंबर छा थींदो? 10 नंबर जेका स्लाइड आहे, एक्चुअली दिस नंबर 10 slide, it is overall result whatever we have discussed regarding the histology. यानी हिन सर इन में डिजीजेस स्लाइड में छा थींदा है जेके डिजीजेस सॼी जेका आहे, यस, चए थो a great or many diseases reveals themselves at cellular level. ये जेके डिजीज़िस आहिनि इहे सेल्युलर लेवल ताईं जेको आहे सो असर अंदाज़ थींदियूं आहिनि, ऐं इन्हनि खे डायग्नोस करण जे लाइ हिस्टोलॉजी जी या उनजी टेक्निक्स जी ज़रूरत पवंदी आहे. सेलुलर लेवल जी मीनिंग मतलब सेल लेवल ताईं इन डिजीज़ जो
जेके डिज़ीज़ असर अंदाज़ थींदियूं आहिनि, जेके मां जिन मां नाला खणी वियुसि, उन्हनि खे डायग्नोस करण जे लाइ हिस्टोलॉजी जी ज़रूरत पवंदी आहे। सर ऐं स्लाइड्स ग्रुप ते बि मोकिलिजो जेका ये आहे PDF। ठीक है, ओके। अब्दुल गफ्फार जी बेटा। Abdul Ghaffar, you want to ask something? यस सर। हेलो जी सर, मूंखे पुछणो आहे की जीअं क्राइम्स थींदा आहिनि या जीअं बॉम्ब वग़ैरह वॉर थींदो आहे त पोइ हुन में जेके ब्लड जा जेके थोरा मतिलबु बचंदा आहिनि, जीअं क्लूज़ हूंदा आहिनि, त सही। पोइ उन्हनि खे इहो हिस्टोलॉजी जी मदद सां डायग्नोस कयो वेंदो आहे की उन्हनि जी फैमिली जी पोइ असांखे इंफॉर्मेशन ॾिसो न, मिलंदी आहे। हिस्टोलॉजी जी मदद सां असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सैम्पलिंग कंदा आहियूं, ठीकु आहे। हाणे सैम्पलिंग हिस्टोलॉजी छो थी चऊं था त क्राइम में बि हिन जी ज़रूरत हूंदी आहे। जॾहिं टिश्यूज़ असांखे ॾिसो, क्राइम में ज़रूरी न आहे त असांखे हर शइ परफेक्ट मिले। उन मां जेकॾहिं ब्लड जा ड्रॉप्स बि मिलंदा आहिनि त बि, या टिश्यूज़ जो को बि पार्ट या को बि डैमेज स्किन या डैमेज पार्ट ऑफ ऑर्गन जो उनजो असांखे टिश्यू जी ज़रूरत पवंदी आहे, त जीअं असां सेलुलर लेवल ते डिस्कस करे सघूं या उनखे आइडेंटिफाई करे सघूं। पर इन क्राइम के या फोरेंसिक जेके माहिर हूंदा आहिनि, उहे वरी पोइ ज़ाहिर आहे उनजे लाइ जेनेटिक्स जी ज़रूरत पवंदी आहे, ऐं जेनेटिकली उनजी जेका स्टडी कई वेंदी आहे त उहे जीन्स या DNA के सां मैच थियनि थियूं उनजी, ठीकु आहे। अगेन वी नीड द जेनेटिशियंस आर दोज who are well known about the genetics, ठीकु आहे, अच्छा उन जे लाइ। बाक़ी जी। हिस्टोलॉजी जो सिर्फ़ु असां टिश्यूज़ लेवल जी जेका असां ॻाल्हि कंदा आहियूं, ठीकु आहे ऐं बाबा। सर उहो हिकिड़ो ॿियो बि सुवाल हुयो, उहो इहो हुयो की बोन्स भी मतलब टिश्यू सां ई ठहियल हूंदा आहिनि। बेटा bone is a type of connective tissue. It is मतलब itself a connective tissue. ठीक है, बोन भी कनेक्टिव ओके टिश्यू आहे। जॾहिं असां लैब में कमु कंदासीं त पोइ मां तव्हांखे वधीक सम्झाए छॾींदुसि त why we call them as a bone as a tissue. Okay. ओके सर, थैंक यू। हाँ बेटा, आरफा, you want to ask something? सर ये सारी स्लाइड्स ग्रुप पे भेज देंगे? ग्रुप पर भी है, और आपको ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की भी मिल रही है, शायद पहले भी मैंने शेयर की है। इज इट? पता नहीं सर। मैंने इनकी लिंक्स जो है वो शेयर की हैं ग्रुप पर। यू कैन go through that link and download the recording video. Okay, वो ग्रुप पर मैंने कर दिया, और इसकी भी सर्टेनली मैं कर दूंगा। ओके शाफे जी। शाफे, you want to ask something? ओके, उसके बाद है मायदा जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये पूछना था कि ज़रूरी है कि हर डिजीज जो है वो टिश्यूज या फिर सेल्स से रिलेटेड हो, सिर्फ नहीं ऑर्गन लेवल पे नहीं नहीं हो नहीं, सकता? हाँ ऑर्गन लेवल्स पर भी डिजीज होती हैं। जो यूजुअली वायरल डिजीजेस होती है बेटा, जो वायरल डिजीजेस होती हैं दे इफेक्ट्स एट टिश्यू लेवल्स। ओके, और या फिर जो इस जिसे मैंने बताया कि वेस्कुलर डिजीजेस हैं, या फिर ब्लड है। ब्लड तो इटसेल्फ इट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड इट्स सेल्स एंड प्लाज्मा, तो ये हैं खुद टिश्यू और सेल्स है। तो अगर ब्लड की डिजीज होगी तो सर्टेनली हम क्या कहेंगे कि ये टिश्यू लेवल तक है। अगर फॉर सपोज हमारे पास हम जो डिजीज है, हम जिसकी हम बात करते हैं कि स्टमक डिजीज है, तो वो स्टमक डिजीज जो है वो सेलुलर लेवल तक शायद ना भी जाए, वो जनरली उनकी मसल्स को टच करती है। लेकिन ज़्यादातर जो वायरल डिजीजेस होती हैं, और वो डिजीजेस जिनको ट्रीट कर हम टाइम पर ट्रीट नहीं करते, तो वो भी
टिश्यूज लेवल तक पहुंच जाती है। ठीक है, ओके सर, लेकिन सर उनको हिस्टोलॉजी से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, हिस्टोलॉजी देखें, हिस्टोलॉजी हेल्प करती है बिल्कुल। जो भी डिजीज टिश्यू लेवल तक पहुंचती है तो हम उसको डायग्नोस्ट हिस्टोलॉजी की मदद से करते हैं। नो डाउट देयर इज अनदर ब्रांच, यू नो, पैथोलॉजी। एक ब्रांच है जिसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, यानी वो ब्रांच है ही रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ द डिजीजेस। लेकिन हिस्टोलॉजी जो है सिर्फ टिश्यू की जब हम बात करते हैं और टिश्यूज में जो डिसऑर्डर्स आते हैं उसकी जब हम बात करते हैं तो हम फिर हिस्टोलॉजी का ही जिक्र करते हैं। ओके सर, थैंक यू। Okay, right. After all, I could see here again, Shafi, you want to ask something? No? Okay, moving ahead. Moving ahead, another branch that is called as paleontology. You know, paleontology, which is also spelled as paleontology, you could see in front of you. यानी हम स्पेलिंग जो है दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। पैलेंटोलॉजी की एक स्पेल ये है और एक स्पेल ये है। ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ of geological past that involved in the analysis of plant and animal fossils. Overall, we can say that the study of fossil, या जो past जानदार जो वो organisms जो कि पहले कभी थे लेकिन अब हमें पता नहीं कि वो कैसे थे, कौन से थे, we only can identify them with the help of fossil record, including those of microscopic size preserved in the rocks. यानी हम रॉक्स की स्टडी करके, क्योंकि वो प्रिजर्व हो जाते हैं, रॉक्स में हो जाते हैं, माउंटेनियस एरियाज में हो जाते हैं, कभी कभार जो सेमी रॉक्स यानी कुछ रॉक्स होते हैं जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, एक्वेटिक पानी के अंदर भी होते हैं। तो वेल ओवरऑल द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इट्स रिकॉर्ड or geological past of organisms. Organisms could be plants and could be animals. उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? Paleontology. Okay, make sure कि we are left with the 6 minutes. Okay, after all the meeting will be ended, and after all I will share these this lecture or recording discussion on the groups. Okay, so paleontologists, and what is the significance? Paleontologists use fossils remain to understand different aspects of extinct जो खत्म हो चुके, extinct and living things. यानी paleontologists use fossil remains. Fossil, I have told you that it is the ancient remains. Paleontologists क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को या उनकी हिस्ट्री समझने के लिए, उसकी इवोल्यूशन समझने के लिए, एक तो वो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनके हमें फॉसिल्स मिले, फॉसिल्स रिकॉर्ड मिला, उनकी स्टडी करते हैं, उनकी इवोल्यूशन की हिस्ट्री करते हैं। और दूसरा है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक भी अगर फॉसिल्स मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कितने पुराने हैं और उनकी इवोल्यूशन क्या है, यानी पास्ट हिस्ट्री क्या है। Okay, individual fossils may contain information about an organism's life and environment. यानी न सिर्फ उनकी ऑर्गेनिजम्स की जो पास्ट हिस्ट्री है बल्कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे थे उसका भी हमें जो है पता चल जाता है थ्रू पैलेंटोलॉजी। ओके, यूजुअली आफ्टर ऑल पैलेंटोलॉजी also play a very key role in the reconstructions of Earth's history and has provided a much evidence to support the theory of evolution. Yani this point number 1 of this slide shows के
पैलेंटोलॉजी जो है वो एवोल्यूशन में इसका बहुत अहम किरदार है, और अर्थ को रिकंस्ट्रक्ट, यानी पहले ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, पहले अर्थ क्रस्ट या अर्थ माउंटेनियस एरियाज जो थे। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्ट्रिक्ट जामशोरो सिंध में जाएंगे तो वहाँ पर एक इलाका है जिसको हम थाना बुला खान कहते हैं, थाना बुला खान। ओके, सो दिस इट हैज अ माउंटेनियस रेंज। ओके, एक इस तरफ जो है माउंटेनियस रेंज है, वहाँ पर हमें एविडेंसेस ये मिल रही हैं कि यहाँ पर पहले समंदर यहाँ तक था, या फिर यहाँ तक जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट था, पानी था, समंदर था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ख़त्म हो चुका, और अभी ये माउंटेनियस एरियाज है, वहाँ पर आपको दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा, या रॉकी एरियाज हैं, वहाँ पर बहुत सारे आपको फॉसिल रिकॉर्ड भी मिलते हैं। जब आप जाएंगे, I have seen there the many fossils and fossil records of gastropods। ठीक है, पायला मोलस्का के से रिलेटेड जो जानदार है उससे हमने ये बहुत सारे जो फॉसिल्स थे वो हमने कलेक्ट किए थे, एंड वी हैव एक्चुअली collected those different types of the fossils and put them at the Museum of Sindh University Zoology Department. Okay, now the second point shows a paleontological study. A study related to paleontology provides a petroleum geologist locating deposits of oil and natural gas. See, यानी paleontologist जो geologist होते हैं, geologist study of earth, and inside the earth or deep in earth जो स्टडी करते हैं, जो पेट्रोल वगैरह, ऑयल वगैरह, जो दूसरे फॉसिल फ्यूल है उनके मतलब जो पता लगाते हैं उनको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी दैट इज ब्रांच इज जियोलॉजी। उनको पैलेंटोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ पैलेंटोलॉजी वी कैन जज, वी कैन आइडेंटिफाई दैट प्लेस कि यहाँ पर पेट्रोल और गैस या फॉसिल फ्यूल हो सकता है। कीपिंग इन व्यू, जैसे मैंने कहा कि थाना बुला खान में हम कुछ फॉसिल्स देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पर पानी था पहले, और यहाँ पर बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स थे जो कि खत्म हो गए और यहाँ पर दफन हो गए, तो यहाँ वहाँ पर जो है पेट्रोल या ऑयल या गैस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड के the occurrence of such fossil fuel is frequently associated with the presence of the remains of certain ancient forms. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं? The occurrence of such fossil fuel is frequently associated with the presence of remains of certain ancient life। यानी वहाँ पर हमें उन फॉसिल्स का होना हमें ये बताता है कि द प्रेजेंस ऑफ रिमेन्स ऑफ एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स के यहाँ पर किसी टाइम में इस टाइप की लाइफ थी, जैसे हमें फॉसिल्स अगर मिलते हैं वहाँ पर, तो यानी we could find the different types of the fossils, and on behalf of fossils we could find the different types of। okay बेटा, we are running out of time, हमारी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, और सर्टेनली हमारी रिकॉर्डिंग भी ख़त्म हो जाएगी। आफ्टर ऑल, in coming class we will discuss the other branches, significance of other branches, and if you have a question you may ask in next class, because ये क्लास अभी ख़त्म होने जा रही है, तो क्लास ख़त्म हो रही है, टाइमिंग भी ख़त्म हो चुकी है, तो जूम पर ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो सी यू एंड रिमेन एट योर होम। अपना और अपनी फैमिली का इस पैंडेमिक डिजीज के दौरान ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।